Assalamu alaikum dear students, welcome back. I hope all of you are fine. I am Sir Junaid, your English teacher. This is our lecture number 26. In our today's lecture we will study about past continuous tense, the active structure of past continuous tense. So before this we studied about past simple tense, both active and passive structure. But in this lecture we will study about only the active structure of past continuous tense. So we will study about sentence structure, we will study about Urdu identification, and along with examples. Okay, so let's start our lecture. Past continuous tense. This is on page number 98, 99 and 100 in your English B book. So first of all, the Urdu identification of this tense. If you compare past continuous tense with present continuous tense, so in present continuous tense we studied about Urdu identification that प्रेजेंट कंटिन्यूस उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है वगैरह के अल्फाज जैसे अल्फाज आते हैं ओके लास्ट में उर्दू आइडेंटिफिकेशन. बट पास्ट कंटिन्यू टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जैसे अल्फाज आते उर्दू जुमलों के आखिर में. जिस तरह बारिश हो रही थी, वो क्रिकेट खेल रहे थे. सो वो बारिश हो रही है पास्ट कंटिन्यू टेंस, बारिश हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, बारिश हो रही थी पास्ट कंटिन्यू टेंस. बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. दिस इज पास्ट कंटिन्यू टेंस. So you have to be careful in Urdu identification between these two tenses, past continuous tense and present continuous tense. So now sentence structure. So students keep this thing in your mind that whether it is present continuous tense, past continuous tense or future continuous tense. तो इसकी और हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आई एन जी. जिस तरह राइट राइटिंग, प्ले प्लेइंग. तो वर्ब की जो मेन वर्ब की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. बट देयर आर डिफरेंसेस इन हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास डिफरेंट होता है. जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने पढ़ा था कि एज एम आर यूज़ होते हैं, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस में हमारे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, वाज एंड वर. according to the subject, if the subject is plural subject like we, you, they, children, girls, boys, okay, so you have to use were. Okay, if the subject is singular subject like I, he, she, it, Ali, child, or any other singular third person pronoun, so then you have to use was. For example, I was I was waiting for my friends. They were playing cricket. So you have to use these helping verb according to the subject and verb first form plus ing. Okay, so now we are going to study three types of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, and negative sentence. Okay students, so before starting assertive sentence, these are some एग्जांपल्स ऑफ उर्दू आइडेंटिफिकेशन. जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह की. जिस तरह वो तेज़ दौड़ रहा था, सो ही वॉज रनिंग फास्ट. तुम कहानी सुना रहे थे, यू आर टेलिंग अ स्टोरी. सो दीज आर उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस. Now the first one, that is assertive sentence, affirmative or declarative sentence. So this is the sentence structure formula of this. कि फर्स्ट सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस पाम आई एन जी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स को देखें. मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था. सो माई फादर, दिस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. माई फादर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वाज. माई फादर वाज वेट के साथ क्या है? आई एन जी. माई फादर वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स. सुबह बारिश हो रही थी. इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग. लोग
पतंग उड़ा रहे थे. So people were flying kites. बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था. Okay, so the old man was dozing in the room. हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे. So we were listening to the news at noon. Okay, so these were few example of assertive sentence. So assertive sentence very simple. सब्जेक्ट के बाद was एंड वर में से आप लोगों ने दोनों दोनों में से एक ही सेलेक्ट करनी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के मुताबिक आप या was लगाएंगे या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस वेरी इजी सिंपल. ओके, इसमें कोई ख़ास मुश्किल है ही नहीं. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की दरमियान में आप लोगों ने नॉट जस्ट पुट करनी है. फॉर एग्जांपल, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था. सो द पियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल. ओके, या इस तरह नीचे देख ले, अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था. सो द रिच मैन वाज नॉट गिविंग आर्म्स टू द पुअर. वाज नॉट गिविंग, वाज नॉट रिंगिंग, वाज नॉट सॉल्विंग. सो नॉट कहाँ आएगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की दरमियान नॉट आप लोगों ने पुट करनी है. सो टू मेक नेगेटिव सेंटेंस अ पास्ट कंटिन्यू टेंस. नाउ इंट्रागेटिव सेंटेंस. तो हमेशा की तरह ना इंट्रागेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने क्या करना है, वाज और वर जो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उस सेंटेंस की स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में आप लोगों ने डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क व्हाइल मेकिंग इंट्रागेटिव सेंटेंस. इंट्रागेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, क्वेश्चन मार्क. सो डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, फॉर एग्जांपल इस तरह सामने मैंने लिखा भी कि इन इंट्रागेटिव सेंटेंस वाज और वर आर द ओपनिंग वर्ड्स, यानी it should be written in at the start of sentence, but in the case of question word it is followed by was or was. Okay, for example, क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था, was he taking part in the games. अगर आप इसको इंट्रागेट सॉरी सिंपल में कर ले, असर्टिव में कर, फॉर एग्जांपल वो खेलों में हिस्सा ले रहा था, सो ही वाज टेकिंग पार्ट इन द गेम्स. बट दिस इज इंट्रागेटिव सेंटेंस, सो यू व्हाट यू हैव टू डू, you have to put the helping word before the subject. was he taking part in the games. क्या आप सर्दी से कांप रहे थे, were you shivering with cold. okay, या फॉर एग्जांपल आप कहते कि मैं सर्दी से कांप रहा था, सो आई वॉज शिवरिंग विद कोल्ड. was I shivering with cold. ओके, क्या गरीब बच्ची चीख रही थी, was the poor girl shouting. ओके, क्या वो शहर खूबसूरत बना रहे थे, वर क्यों आए, बिकॉज दे आर प्लूरल सब्जेक्ट. सो वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल, या वर दे डेकोरेटिंग द सिटी. So this is the way to make interrogative sentence. Okay, so students, it was a very simple and easy tense. इसमें बस ख़ास मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इसको थोड़ा सीरियस लेना है और try to understand these things, try to make your concept clear and try to do practice. तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की जो होमवर्क है, होम टास्क, दैट इज़ कि डू प्रैक्टिस अब पास्ट कंटिन्यू टेंस. आप लोग बैठ के शीट्स निकाले और उस पर पास्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंसेस बनाए. 10 to 15 या 20 तक सेंटेंसेस बनाए. आप देख ले जो आपके रोज़मर्रा के जो आपकी डेली लाइफ में जितने भी वर्ब यूज़ होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उसको सोच के आप लोग बना ले. सेंटेंसेस अपनी तरफ से ख़ुद बना ले, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी, राइटिंग स्किल भी, और साथ आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगी. ओके, और इसके बाद जो है पेज नंबर 98, 99 और 100 पे जो एग्जाम्पल के अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग बैठ के इसकी प्रैक्टिस भी करें और अपने नोटबुक्स में उतार दें. सो इट वाज इनफ फॉर टुडे. In our next lecture we will study about how to change past continuous tense into passive voice. So we will study how to change the active sentences of past continuous tense into passive voice. So see you in next lecture. Allah Hafiz.